guys, welcome to my channel Speed Work for Competitions. Hopefully आप लोग स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और सर्दियों का मजा ले रहे होंगे. So I'm back with a new topic of current affair questions. So let's see. And before we continue, please don't forget to subscribe to my channel and also don't forget to like my Facebook page. Both have same name, Speed Work for Competitions. So let's begin. So question number 1. Which famous peak height has been revised recently? किस फेमस पीक की हाइट रिसेंटली रिवाइज की गई है? ऐसा यूजुअली होता नहीं है बाय द वे, बट स्टिल रिसेंटली इट वाज इन द न्यूज़. सो ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी माउंट ब्लैंक, ऑप्शन सी माउना किया, ऑप्शन डी माउंट फ्यूजी. अगर आपको ये नहीं पता है तो आई थिंक इसको आंसर करना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक अ वाइल्ड गेस. तो इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन भी है और उसकी हाइट फर्दर बढ़ा दी गई है. सो इजंट दिस अ गुड न्यूज़? सो रिसेंटली द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, which is now 0.86 meter higher than its previously calculated height, which was calculated officially. Both Nepal and China government have announced that the new height is now 8848.86 meter, or approximately 29,032 feet. So previous height was 8848 meter and now it is 8848.86 meters. तो जो ये old height थी 8848 meter की, वो has been used by Nepal since ages and it was determined by Survey of India in 1954. और ये first time है जो कि नेपाल ने ये measurement किया है खुद. Now there were some reasons like China और नेपाल का आपस में थोड़ा conflict था in terms of height कैसे calculate की जानी चाहिए, like should we have the snow at the summit in height or not, on those kind of things. So finally both governments have agreed and ultimately Mount Everest has got the new height. अब अगर बाकी choices की तरफ देखें तो we all know Mount Fuji is in Japan. Now question for you all is where is Mont Blanc and where is Mauna Kea? तो कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है, और इनके बारे में कुछ और नई चीज़ें अगर मालूम है तो वो भी बताएं. It will be really great. Again, Mont Blanc, which is one of the famous mountains, and also Mauna Kea, which is also one of the famous thing. It is famous for something else as well. So I would like to see some comments. Let's move to the next question. So next question है एक ऐप के या एक प्लेटफॉर्म के बारे में. So which Indian bank has launched iMobile Pay application? कौन से इंडियन बैंक ने iMobile Pay application लॉन्च किया है? A SBI, B ICICI, C HDFC बैंक या D कैनरा बैंक. अब यूजुअली आजकल तो हर एक मोबाइल का अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ऑब्वियसली डिजिटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो ये सब न्यूज़ रिसेंटली मतलब आती रहती हैं. बट this time ICICI has actually announced recently that they have transformed their state-of-the-art mobile application iMobile app into an platform which will now offer payments and banking services to customers of any bank. I think तो पहले ये था कि iMobile app जो था वो सिर्फ ICICI बैंक के कस्टमर्स के लिए था. तो अगर आप उसके कस्टमर हैं तभी आप उसका यानी कि ICICI बैंक के कस्टमर हैं तभी आप उसको यूज़ कर सकते थे. बट नाउ दे हैव फर्दर ट्रांसफॉर्म्ड इट, सो नाउ इट इज़ लाइक एन यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म. तो विल सी सम ऑफ द फीचर्स. So just like in Paytm, I think iMobile Pay now allows you to transfer fund to anyone's mobile number seamlessly. Obviously, security is being the iMobile feature will be used as an iMobile feature. Then you can now scan the QR code and complete the transaction. Just like the normal payment, जब भी आपको पेमेंट करना होता है तो आप अपना QR कोड स्कैन करके उसको प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर आप अपना QR कोड जिसको आपको पेमेंट देना है उसको iMobile ऐप के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं ताकि वो आपको पेमेंट कर पाए. और इसमें और भी कई फीचर्स हैं, तो उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी दी ICICI bank in the internet. If you Google it, you will find it very easily. What are the key features of iMobile Pay?
let's see, आप उस पेज को रीड करें और maybe you can comment as well what other features or what features are in pipeline for this mobile app. So let's go to the next question. So next question is in news these days, in fact for every country. So I thought it will be very good to have this question. So question is regarding economy, and the actual thing is like technical recession is when a country faces contraction of GDP for how many quarters. So note that technical recession is slightly different from the actual recession. That's one thing. So before you even answer, you should know that, okay, these are two separate things. So choices are option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. So iska right answer hai 2. So technical recession is said to be when a country faces back-to-back decline or 2 consecutive quarters decline in the GDP or the gross domestic product. So answer is 2, but now this thing is very important for a lot of countries including India. So as per latest bulletin by RBI जो कि नवंबर में रिलीज हुआ था, India has entered into a technical recession for the first half of the current financial year. अभी तो उससे दो जितने भी quarters हुए हैं, so basically it is the first time that India has entered into a technical recession. So this is to be noted. Now the next question is, what is the difference between technical recession and the normal recession? Is there any difference? First of all, as we have said before, there is a difference. So we'll see what is the difference. So when a recessionary phase sustains for a long enough period, it is known as recession. Now note that recession का ऐसा कोई universally accepted definition नहीं है. So that long for me can be 6 months, that long for any other country can be 12 months and so on. But in generally, जब a recessionary phase sustains for a long period, it is known as recession. यानी कि GDP contract हो रहा है काफी long period के लिए, then economy will be said to be in a recession. Whereas in a technical recession, the number of terms are fixed. So we say 2 quarters, back-to-back quarters. So one big difference is obviously length. तो recession का कोई universally accepted length नहीं है, लेकिन वो it may be any quarters. And whereas technically recession is fixed length, so back-to-back quarters में यानी कि 2 quarters में at least आपका GDP decline होना चाहिए. And lot of countries because of COVID are in technical recession, and their administrations are putting lot of new policies and lot of changes so that थोड़ा fiscal deficit कम हो पाए और साथ ही साथ economy थोड़ा चल पड़े जिसे कहते हैं. So let's go to the next question now. Now this is an interesting question जो कि अभी recently news में था. So let's see if you can answer this one. Dubbed as the world's loneliest elephant. Now note that I'm not talking about man or woman. We are talking about elephant. So dubbed as the world's loneliest elephant has been shifted from which country to which country? तो एक एलिफेंट है किसी देश में ऑब्वियसली जिसको वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट एलिफेंट का खिताब मिला है, ऑफिशियली नहीं बट उसके सपोर्टर्स हैं, उस मूवमेंट के सपोर्टर्स है. तो अब बताना है आपको ये है कि उसको किस कंट्री से किस कंट्री में ट्रांसफर किया गया है. सो ऑप्शन ए इंडिया टू श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान टू साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी थाईलैंड टू इंडिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान टू कंबोडिया. अभी अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दें तो लेट्स सी, अगर आपको नहीं भी पता तो एलिमिनेट इसको बड़े आराम से कर सकते हैं. एटलीस्ट कुछ चॉइसेस को तो डेफिनेटली एलिमिनेट किया जा सकता है, जैसे कि इंडिया टू श्रीलंका. भी इंडिया में भी बहुत एलिफेंट्स हैं और श्रीलंका में भी बहुत एलिफेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा लोनलीएस्ट एलिफेंट होगा वर्ल्ड का, खासकर इंडिया या श्रीलंका में. और अगर है भी तो उसको इंडिया में खुद इतने सारे ऑप्शंस हैं कि उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जू से दूसरे जू या नेशनल फॉरेस्ट कहीं पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है, इंक्लूडिंग श्रीलंका एज वेल. तो ऑप्शन ए कैन बी स्ट्रेट अवे एलिमिनेटेड. नाउ सेम एज ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी को भी आप स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं. थाईलैंड इंडिया मतलब कोई तुक नहीं बनता किसी भी चाहे जो मर्जी रीजन हो जाए. अब क्वेश्चन बचता है बी और डी. सो पाकिस्तान टू साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान टू कंबोडिया. तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान टू कंबोडिया. सो एन एलिफेंट डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड्स loneliest elephant by the supporters has landed in Cambodia from Pakistan, Islamabad. और इसको कावन या आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली और नॉट, कावन जो कि एक ओवरवेट 36 ईयर ओल्ड एलिफेंट था,
इसके बारे में काफ़ी ग्लोबल अप्रोर मचा था फ्रॉम एनिमल राइट ग्रुप्स, जिन्होंने इसका फिर पिटिशन किया कि इसको यहाँ से मूव किया जाए, यानी कि इस्लामाबाद जू से मूव किया जाए टुवर्ड्स एनी कंट्री। और एक्यूजेशन ये था कि इस्लामाबाद जू में उसका प्रॉपर केयर और कंडीशंस मतलब उसकी नहीं की जा रही। सो इवन इंक्लूडिंग अमेरिकन पॉप सिंगर शेयर अनाउंस हर सपोर्ट इन द रिलोकेशन। और जब ये ट्रांसफर किया जाना था, आई थिंक उससे पहले इन्होंने इस्लामाबाद जू का चक्कर भी लगाया था तो इस एलिफेंट से मिलने के लिए। कुछ आई थिंक इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री ये है कि जितना मैंने पता करने की कोशिश करी वो ये है कि ये एलिफेंट जो है बचपन से जू में था, और उसके बाद इसके साथ इसकी एक साथी भी थी एंड शी डाइड, एंड आफ्टर दैट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 2012 से ये एलिफेंट जो है बिल्कुल अकेला सा है, उदास सा रहता था और ओवरवेट और हो गया था। और उसकी एज वी सेड कि थोड़ा बहुत एक्यूजेशन था कि उसका ढंग से केयर नहीं किया जा रहा। सो अल्टीमेटली कोर्ट्स एग्रीड एंड इट वाज डन, सो दैट्स गुड फॉर हिम आई वुड से। एंड थैंक्स टू द पीपल जो कि इतना केयरफुल थे और इतना सपोर्ट दिया एक एलिफेंट के लिए। वो आजकल तो लोग इंसानों को भी सपोर्ट नहीं देते हैं, एलिफेंट तो फिर बहुत आगे की बात है, बट विच इज गुड टू सी। सो ह्यूमैनिटी इज स्टिल अलाइव। Let's move to the next question. So question है, which country has decided to phase out oil and gas by 2050? अभी आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा देश आ गया भाई जो ऑयल और गैस को फेज आउट करना चाहता है, बट इट इज देयर। सो एंड हेंस दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। अब अगर आपको एलिमिनेट करना है तो आई डोंट थिंक सो सऊदी अरेबिया ये डिसीजन कभी लेगा कि भाई ऑयल और गैस को ही वो स्टॉप कर दें बाय 250 और फेज आउट करें solely because their lot of their economy is dependent on oil and gas and exports, and that makes them one of the richest countries. So Saudi Arabia can be eliminated. अब बचता है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का तो भी कोई इरादा नहीं है, खासकर जब ब्रेक्जिट क्वेश्चन में हो तो स्कॉटलैंड भी नहीं है। अब बचती हैं दो नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्वे और डेनमार्क। सो अगर आप वैसे ही गेस करना चाहते हो तो सीओडी एलिमिनेट करने के बाद या तो नॉर्वे चूज कर लीजिए या डेनमार्क, 50-50 चांस बनेगा तो कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क। सो डेनिश पार्लियामेंट हैज रिसेंटली वोटेड, माने कि इस महीने में उनका पार्लियामेंट्री सेशन या जो भी प्रोसीजर होता है उस पर उन्होंने वोट किया है to stop issuing new leases and end oil production by 2050. It's typically dealing with the North Sea. This makes Denmark the first major oil producing country in the world to phase out this production. This is very important. It's like a landmark decision because Denmark is a very major oil producer in the EU and it's in the world as well. तो एक तो ये कि इट्स लाइक अ लैंडमार्क डिसीजन एंड थैंक्स टू द अथॉरिटीज कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। दूसरा ये इसके कुछ अगर कुछ रिपोर्ट्स पे जाएं, अगर आप थोड़ा बहुत सर्च करें तो ये था कि उनको कुछ इतना इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा था, मतलब इन्वेस्टर्स या जो भी इकोनॉमिक प्रॉफिट्स की टर्म्स में गए। आई डोंट नो वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, बट ऐसा कुछ है थोड़ा बहुत न्यूज़ में। सो जो भी रीज़न रहा हो, we cannot go into that detail, but it is still a landmark decision. जो भी जैसा भी डिसीजन हो, जैसे भी कारणों से लिया गया हो, कि कोई कंट्री अनाउंस करे कि भाई हम लोग ऑयल और गैस में न्यू लीसेस नहीं देंगे और बल्कि जो एग्जिस्टिंग है उनको भी फेज आउट करेंगे बाय 2050. It's very big, very big achievement and very big decision. So thanks to the Danish government. So let's see what's next. इसके साथ आज का टॉपिक हो गया है खत्म. सो आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक एंड न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन सून. आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी. कृपया करके कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा. एंड thanks for watching this session, and please don't forget to subscribe to my channel and also don't forget to like my Facebook page. Bye bye.